ओके लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पे अटेंशन। तो हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो हमने देखा कि मोस्टली हमारे पास जो सिग्नल होता है यूनिवर्स में दैट इज एनालॉग। फिर और हमें उसका नॉर्मली आउटपुट भी एट द एंड ऑफ द डे एनालॉग ही चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे इफ यू हैव दी simple example can be we have the temperature, we have the intensity, we have the stock data. All of these can take any value at any time. It can take any value. It is a continuous time signal. लेकिन इन सबको हम प्रोसेस करना चाहते हैं डिजिटल डोमेन में, इसलिए हम इसको कन्वर्ट, जैसे मिसाल वेरी गुड एग्जांपल इज योर वॉइस। लेट इट बी दैट दिस इज योर मोबाइल and what I am inputting the signal to this black box again, because for me it is a black box because I don't know what is happening inside this box. Okay, so it takes something from me as an input which is analog. It is a continuous time. So ladies and gentlemen, ओके तो हमने कहा कि जनाब लेकिन because the processing, the efficiency of digital equipment is better as compared to the analog, that's the reason at the first step we convert them from analog to digital. ठीक है? And then once we have in the digital, then we can do different processes as per our need. मिसाल के तौर पे we want to compress it, yes we can compress it more efficiently in the digital domain. We want to modulate it, yes we can modulate it in very efficiently in a analog in digital domain. We want to encrypt it, yes we can encrypt it in very efficiently in the. We want to find the error, we want to implement error detection, yes we can do here. We want to do multiplexing, yes we can do here. So we implement multiple processes in the digital domain. But again our user again our user want to listen, so we have to convert it into analog back, and we do the digital to analog converter we use, and you give our user the same analog signal back. ठीक है? Now हमने ये पढ़ा है कि we can represent this discrete time signal. We have seen that signal can be continuous time. We have seen that the signal can be discrete time and it can be digital. पढ़ा ना हमने? Now we can represent our discrete time signal in 4 different ways which we have already studied. Number one, we can represent it graphically. Like very simply, I can say that this is a, at 0 it is 1, and for the rest it is 0. Or another one, for example, at 0 it is 1, at 1 it is 1, at 2 it is 1, at 3 it is 1, and for the rest like this, and for the it is zeros for the negative part. What I am doing here, gentlemen, I am representing it in graphically. Now similarly it can be represented by functional. Now what I mean by the functional? Functional means one way to implement in the functional, let me call it x of x1 of n, and let me call it x2 of n. Now functional means mathematically x1 of n is equal to 1 for n is equal to 0, and this is equal to 0 for n is not equal to
Now this is something which is the functional representation, mathematical representation. Clear hai? Similarly, I can write here that x2 of n is equal to 1 for n is equal to or greater or equal to 0, and it equal to 0 for n is less than. So what I am doing here, I am representing the same signals graph which are shown in the graphically. Now I am representing them in a functional representation, mathematical representation. Even I can represent it like this as well. Ladies and gentlemen, for example, x1 of n is equal to 1 for n is equal to 0, and it is equal to 0 for n is equal to -1 is equal to 0, for n is equal to -2 is equal to 0, for n is equal to 1, for n is equal to 2, and so on. This again, normally for infinite signal we don't do like this, but if it is a finite signal, this is also the functional representation of our sequence. Not clear? मिसाल के तौर पे, if you are confused, my signal is at 0, 2, 1, and at 0 it is 0. चल इतना ही काफी. So I can write, and this is represented by x of n. I can say that x of n is equal to 0 for index n is equal to 0. The value is equal to 1 for n is equal to 1. It is equal to 2 for n is equal to. So what I am doing here, I am representing this x of n sequence functional. Clear? Then, ladies and gentlemen, the third thing which you have learned about is the tabular. That what you do, you make a table. You make a table. At one end you have the index, and the other end you have the value of the sequence at that index. For example, if you take the same, now you have the index 0, you have the index 1, and you have the index 2. So at index 0, you have the value 0, 1, and 2. So you are representing the same sequence in the tabular. Clear है? लोग क्यों काम है आज? लड़के लोग ही हैं ना जी. क्यों एक वीक पहले छुट्टी मना ली? ये रीजन है. सीआर लोग घर गए हैं. सीआर कौन है? सीआर इनके नेम जो हैं, मैं आपको अटेंडेंस आपकी फॉरवर्ड कर दूंगा. आप मुझे उनके नेम्स जो हैं वो मुझे दे दें, वायु में मिलेंगे. ठीक, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ऐसी कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए. तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि जी रीजन दे, तो वाइवा ले लेते हैं. नहीं देते हैं तो फिर कुछ बात कर लेते हैं. ओके, फिर है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन. इसमें थोड़ी सी आपको तवज्जो देनी होगी. सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी होगी. लेडीज एंड जेंटलमैन, सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि वी विल बी गिविंग यू x of n is equal to a sequence like, for example, -2, 0, -1, 2, 1, 0. Or it can be given to you as x of n -2, 0, -1, 2, 1, 0. क्या दोनों में कोई फर्क है? दोनों में कोई फर्क है? सीक्वेंस सेम है, तो फिर फर्क x1 है. Let it be, may call it x1 of n. Let me call x2 of n. Whether the two sequences are same or different? सेम है. लेकिन अगर मैं एक यहां पे एक एरो लगा दूं, आलियान, क्या फर्क है आलियान? सेम और डिफरेंट?
what's the difference here? सर ये यहाँ पे एरो है वो इंडेक्स 0 तो इसका मतलब है कि ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है। पहला सीक्वेंस जब ना दिया गया हो तो इसका मतलब कि आपका एरो यहां पे है। इसका मतलब कि पहला सीक्वेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 and 5, 4 3 2 1। now at 0 it is -2, at 1 it is 0, at 2 it is -1, सॉरी माइनस इधर लगना चाहिए था, -1, 3 पे 2 1 and 0। लेकिन the second one is, now here it is the 0 where I have the -1, this is 0 at -1, at -2 it has a value -2, similarly at 1 it has the value 2, at 2 it has the value of 1, and then at 3 it has the value 0। now the two sequences are not the same, we can see graphically। gentlemen, नहीं clear? शाबाश, that's something I want to listen। नहीं समझ आई, कहने का मकसद ये है जेंटलमैन, क्या नाम है? मोहसिन, मूसा। मूसा कह रहे हैं कि जी समझ नहीं आई। मैंने कहा कि अगर ये एरो नहीं दिया गया, अगर दोनों में ये एरो नहीं है, फिर तो ये सेम है, फिर तो ये सेम है। लेकिन वैल्यूज अभी भी सेम है, लेकिन मैंने यहां पे एक एरो लगा दिया, मैंने यहां पे आपके सामने एक रेड एरो लगा दिया ताकि आपको नजर आए। नजर आ रहा है? अब इस एरो का मतलब ये है कि ये इसका 0th इंडेक्स है, ये इसका फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, -1 है, -2 है। इसके मतलब ये सीक्वेंस -2 से लेके +3 तक मौजूद है। जबकि इसके मुकाबले में जब इंडेक्स नहीं है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि ये इसका 0th इंडेक्स है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। नाउ दिस सीक्वेंस इज फ्रॉम 0 to 5। इसका मतलब दीज टू सीक्वेंसेस आर नॉट द सेम, दे आर शिफ्टेड सीक्वेंस ऑफ वन अनदर, जिसमें मैं अभी कुछ देर में बात करता हूं। यहां तक बात क्लियर? अब ठीक है मूसा? ओके। तो मूसा आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए पेपर में, आपने उस पर घबराना नहीं है कि वो आपको हो सकता है कोई एक फॉर्म में दे के और दूसरी दो फॉर्म में आपसे पूछ ले। तो आपने ये नहीं करना कि जी नहीं, ये तो ये मुश्किल बात है, क्योंकि आपने ये चारों अपने पहले भी पढ़ी है, मैं रिवाइज भी कर रहा हूं। ठीक है? फिर 1 by 1 भी अगर इस पे आप जाना चाहते हैं तो वी किस तरह ग्राफिकल, दिस इज द ग्राफिकल फॉर्म। अगर मिसाल के तौर पे ये ग्राफिकल है तो और मैं आपको कहूं कि इसको फंक्शनल में ले जाओ, तो यू कैन इजिली, वेरी इजिली राइट इट लाइक दिस कि जनाब माय एक्स ऑफ एन, इफ दिस इज एक्स ऑफ एन एज यू कैन सी हियर, इफ दिस इज एक्स ऑफ एन is equal to -3, as you can see here, when for n is equal to -2, then 2 for n is equal to -1, then it has a value of 0 for n is equal to 0, and so on। that is the easiest way। लेकिन ऐसा को हम बाज़ औक़ात मुमकिन होता है कि हम उसको मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट कर दें किसी इक्वेशन के साथ। ठीक है? तो उसको भी हम देखते हैं। क्लियर? तो देखिए यही बात जो मैंने यहां पे लिखी है, इसने यहां पे देखें एक्स ऑफ -2 के ऊपर, -2 के ऊपर द वैल्यू इज -3। इसी तरह -1 पे इट हैज ए वैल्यू ऑफ 2। क्लियर हो गया? ओके। देन इज दी, देखिए ये वही फंक्शनल फॉर्म, लेकिन कई जगह पे हमने कहा, देखिए वही जो मैंने अभी बनाया था, द सेम इज रिटन हियर, बट in some cases we can write it like this as well।
और लाइक दिस एज वेल। मिसाल के तौर पे इफ आई प्लॉट दिस, इट इज एक्स ऑफ एन, इट इज एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, चलें जल्दी से इसको प्लॉट करें। पेन भी है माशाल्लाह और कॉपी भी है। इसका आसान तरीका क्या होगा कि पहले आप पहले स्टेप में आप यूएफएन प्लॉट कर लें। तो दैट इज 0 1 2 3 एनफ, एंड एवरीवेयर इट हैज अ वैल्यू विच इज 1। फिर क्या है, अब अगर एन की वैल्यू 0 है, एन की वैल्यू 0 है, तो 2 की पावर 0 इज 1। फिर अगर यहां पे वैल्यू इसकी 1 है तो 2 की पावर 1 इज 2। अगर 3 है, सॉरी 2 है तो 4, 3 है तो 8। इसका मतलब कि आप इन नंबर्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 0 1 2 3, 0 पे हो जाएगा वही 1, 1 पे हो जाएगा 2, 2 पे हो जाएगा 4 और 3 पे हो जाएगा 8। 2 पावर 3 इज 8, 8 into 1 8। तो यूर दिस इज बिकम 2 ऑफ एन यू ऑफ एन। क्लियर हो गया? So this is the representation, functional, mathematical, and this is graphical. Now, if you have the graphical, very simple to put in into the graph, into a table. Table में कैसे हो जाएगा? You have the x तक n and x of n. The values are from 0 to, sorry, 0 1 0 1 2 3। 0 पे क्या वैल्यू है? 1, 2 पे 1 पे 4 8। that is the tabular representation. सर टू पावर एक्स का मतलब 12 की पावर एन की यू ऑफ एन है, इसका मतलब ये क्या है? मैंने पहले का, अब दोबारा कहता हूं, सीक्वेंस जो है कोई भी हो सकता है। तो हमें एक सीक्वेंस दिया गया कि जी दिस इज अवेलेबल इन द पॉजिटिव। मोस्टली हम कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं? मिसाल के तौर पे हम चाहते हैं कि नेगेटिव के वैल्यूज सिग्नल में ना हो। लेट करें सिग्नल हमारा यहाँ पे -3 पे भी था, -2 पे भी था, -1 पे भी था, 0 पे, 1 2 3 पे कोई ना कोई वैल्यू थी, एंड दैट वाज रिप्रेजेंटिंग 2 की पावर n। अब इसका मतलब है कि 2 की पावर n का मतलब है कि 2 की पावर दिस विच इज 1/8, 1/4, 1/2, देन 1, 2 की पावर 0 1, देन ब्ला ब्ला ब्ला। आपने इसको जस्ट यू एफ एन से मल्टीप्लाई करके ये सारे पार्ट निकाल दिए, थ्रो आउट कर दिए। अब आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो द प्लॉट इज हेयर। यू वांट टू शो इन द टैबुलर, इट इज हेयर। तो आपने देखा कि जी ग्राफिकली कैसे है, फंक्शनल कैसे है, टैबुलर कैसे है। सीक्वेंस वाइज देखना चाहें तो वो भी दुनिया का आसान काम है कि आपने सिर्फ 1 2 4 8 और बेतरह के एरो भी यहां लगा दें। तो चारों के चारों में मैंने इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करना बता दिया। आ जाओ इधर, क्वेश्चन करो। सही है? श्योर? ओके, देन इज लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये आपने टैबुलर को भी सभी वास्ता आपका पड़ गया, सीक्वेंस का भी पड़ गया। याद रखो, अच्छा ना इस पे भी आएंगे, याद रखने की बात नहीं। अब हम आते हैं जनाब कि इफ यू वांट टू डू दी, लाजमी तौर पे जब सिग्नल है तो उस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होंगे। अगर सीक्वेंस है तो उस पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे।
अब क्या अर्थमेटिक ऑपरेशन से क्या मुराद होती है? सिंपल मैथ ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो अगर किसी ने आपको सम करना सिखा दिया हो तो डिफरेंस इशू नहीं है। अगर किसी ने प्रोडक्ट समझा दिया है तो डिवीजन मसला नहीं है। जैसे मुझे नहीं याद कि क्लास के साथ मैंने कहा कि जी इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 दे दिया कि जी 2 से सारे को मल्टीप्लाई कर दें, हो गया, वेरी नाइस जी। मैंने अगले सवाल में 1/2 कर दिया। कहते सर ये तो नहीं हो सकता ना, अब ये तो 1/2 हो गया है। तो दैट इज डिवीजन। ये और डिवीजन भी नहीं आती तो 1/2 इज 0.5, 0.5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो बाज होते हैं नशेजादे, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने ये बात नहीं करनी, ठीक है, कि करनी है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस चीज का आपने ख्याल रखना है, सिर्फ ये बात है जो कि नॉर्मल अरिथमेटिक में और इस अरिथमेटिक में फर्क है कि आप सम या प्रोडक्ट, जिसे हम बाज़ औक़ात कहते हैं बिट वाइज करो, तो यहां पे हम कहते हैं सैंपल वाइज करो। यानी कि पहला सैंपल सिर्फ पहले सैंपल में ऐड हो सकता है। यानी कि इंडेक्स 0 वाला 0 में ऐड होगा, 1 वाला 1 में ऐड होगा, 2 वाला 2 में ऐड होगा, 3 वाला 3 में ऐड होगा, -10 वाला -10 में ऐड होगा। क्लियर होगी मेरी बात? यानी मिसाल इसकी ये है कि अगर मेरे पास ये एक सीक्वेंस है एक्स ऑफ एन, चलें इस सीक्वेंस को हम ले लेते हैं। ये मैंने एक सीक्वेंस ले लिया, सॉरी प्लॉट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी से क्लियर हो जाए। तो ये है -2 से लेके, एनी हाउ जेंटलमैन एट द बैक, नाम बताएं और बताएं कि इसका इंडेक्स कहां से लेके कहां तक होगा इस सीक्वेंस का। नजर नहीं आ रहा? ये बहुत बड़ा मसला है। तो अगर हमें बड़ा मसला होता है तो हम बड़े मसले को बड़े तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, और बड़ा तरीका ये होता है कि इससे ज्यादा और बड़ा क्या दिखा दूं। इससे ज्यादा बड़ा जरूरत है? काफी है? चलें जी, काफी है। तो आपकी स्टूडेंट, आपके फेलोज कह रही हैं कि काफी है। अब बता दें जी कि इस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इसके मतलब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। अगर ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो इसका इंडेक्स कहां से लेके कहां तक है? -3 से 2 तक। डरो मत, सोच के बात करो। आप कह रहे हैं कि इसका इंडेक्स जो है वो -3 से 2 तक है। डू श्योर? नाम क्या है आपका? अवैध साहब। -2 से देखिए ना, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये -2, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अब -2 पे, चलो इसको -2 कर देते हैं, इट हैज ए वैल्यू -3, देन एट -1, then at 0, then at 1, then at 3. So it has some certain values. Now if you have this signal, for example, is x1 of n, you have another signal x2 of n. So only if the other signal has an index at value 3 at -2, that -2 will be added to this -2 index. यानी कि अगर इस सिग्नल के साथ मैं ये सिग्नल दे दूं -3 2 0 3 1 2, तो these are two different sequences. Here इसका इंडेक्स जो है that is starting from 0, तो इसका ये 0 इसके इस 0 के साथ ऐड होगा, इसका ये 1 इसके 1 के साथ होगा, 2 इसका 2 के साथ होगा, 3 इसका 3 के साथ होगा, 4 5 यहां पे इसका मतलब 0 है, तो ये 4 और 5 में जाके ऐड होंगे। अब बात क्लियर है? ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी, और लाजमी तौर पे जब मैंने कहा एडिशन के लिए ये है, तो फिर इसका मतलब है यहां से मुझे कहा गया कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है कि अगर ये x1 ऑफ n -x2 है, तो पहले आप इसका वैल्यू लेंगे और फिर आप यहां से वैल्यू लेंगे और उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर?
इसी तरह जब मल्टीप्लीकेशन होगी द सेम, नंबर 2 इंडेक्स वाला 2 वाला इंडेक्स -2 के एक साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 वाला -1 के साथ होगा, 0 वाला 0 के साथ होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके जनाब, वापस आते हैं। ओके, तो आपने ये देख लिया कि आपका nth एन 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 मीन सेम इंडेक्स, एन मीन सेम इंडेक्स, सेम इंडेक्स के जो सैंपल्स हैं वो आपस में ऐड भी होंगे, सब्ट्रैक्ट भी होंगे, मल्टीप्लाई भी होंगे, डिवाइड भी होंगे। एनी मुश्किल? ओके, देन इज द नेक्स्ट थिंग इज, जिसको अभी हम देखेंगे भी, इसको हम स्केलर मल्टीप्लीकेशन या एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड स्केलिंग। इसका मतलब है कि यहां पे तो ये दो सैंपल, ये दो सिग्नल्स थे, दो सीक्वेंसेस थे, ये देखें आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि दीज आर दी, इन करली ब्रैकेट का मतलब है कि दे आर दी sequences, two sequences, and each sequence represent a discrete time signal. इसका मतलब these are two discrete time signals. While this is the discrete time signal, this is the discrete time signal, but this is just an scalar value. It is not a signal. बात समझ आ गई? It is not a signal. तो क्या होगा? होगा ये अब कि मिसाल के तौर पे अगर हम ये सिग्नल ले लें और इसको हम के साथ, जबकि हम कह देते हैं कि के की वैल्यू लेट इट बी 2 है, तो ये 2 के साथ इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें आप, क्योंकि इसके इंडेक्स नहीं है, तो ये सबके एम्पलीट्यूड को जाके 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इट विल बिकम 6, 10, 4, 2, 8, 14। नॉट क्लियर? ठीक है मूसा? ओके, देन इज दी, ओके, फिर हम जेंटलमैन कुछ प्यारे प्यारे ऑपरेशंस देख लेते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी, सॉरी, सिग्नल्स देख लेते हैं, एलिमेंट्री डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। क्यों दिखा रहा हूं? इसलिए दिखा रहा हूं कि आपने इसके टाइम के कंटिन्यूस टाइम में ये सारे के सारे देखे हुए हैं। कंटिन्यूस टाइम में आपने सारे के सारे, डिस्क्रीट में भी आपने, मिसाल के तौर पे आपने यूनिट स्टेप सीक्वेंस, आपने यूनिट इंपल्स या यूनिट सैंपल और कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस देखे हुए हैं। हम बाकियों को भी एक नजर में जल्दी से देख लेते हैं। आपने रियल सीक्वेंसेस भी देखे हुए हैं, ये चारों आपने डिस्क्रीट में भी देखे हैं, बल्कि नंबर 6 के ऊपर आपने असाइनमेंट भी सबमिट कराई है। क्लियर है? लेडीज एंड जेंटलमैन, वन बाय वन इनकी तरफ से गुजर जाते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्या है? यूनिट स्टेप, यानी कि यू ऑफ एन, यानी कि u of n is equal to 1 for n is greater or equal to 0 and is equal to 0 for n is less than 0. Very nice. ठीक है, सो नाउ इट इज, पहले क्या था? u of t, हमने पहले पढ़ा था u of t, अब हम पढ़ने u of, क्योंकि इसका मतलब पहले हम पढ़ना चाहते थे डिस्क्रीट कंटिन्यूस टाइम में, अब हम पढ़ना चाहते हैं ओनली डिस्क्रीट टाइम में। ठीक है, और ये भी बताता चलो कि बुध को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट क्लास कब है? वेनेसडे को, तो वेनेसडे को क्लास होगी। अच्छा जनाब, अब वन बाय वन इनको आप देखते हैं।
क्योंकि सेमेस्टर मेथड का जो बेसिक मकसद है एज कंपेयर टू दी, इफ यू कंपेयर विद दी नॉर्मल एनुअल मेथड, कि वहां पे आपको एक लंबा कोर्स कराया गया होता है साल में, और उसके बाद आपको कहा जाता है कि जी आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन ऑफ है, घर में बैठ के इसको रिवाइज करो, तैयार करो वगैरह। सेमेस्टर मेथड की इंपॉर्टेंस ये है कि कोर्स कम होता है, और एज्यूम ये किया जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्राइडे को आपकी आखिरी क्लास है, तो मंडे को आपका पहला पेपर है। तो इसमें इसका मतलब इसमें कोई ब्रेक्स नहीं होती, क्योंकि अगर इसमें भी ब्रेक्स डाल दी जाए कि मिड में भी ब्रेक है, फाइनल में भी ब्रेक है, अगले के मिड फाइनल, तो माशाल्लाह चार, अगर एक एक हफ्ता भी दें तो 4 वीक तो इसमें, यानी कि एक महीना तो इसमें उड़ गया। तो फिर तो एनुअली बेहतर था कि एक ही दफा छुट्टी देनी पड़ती थी और बस एग्जाम हो जाता था। और माशाल्लाह आप लोग तो फिर उसके बाद भी एक्सपेक्ट करते हो कि जी अब थकावट हो गई है। तो इसलिए ये मैसेज बड़ा, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, लाजमी तौर पे आप लोगों को सुनना पड़ेगा। तो जब आप सुनेंगे तो मैं ये आपको वार्न कर रहा हूं कि उसके बाद जो वीक होगा उसमें मैं क्लास लूंगा। कोई छुट्टी, जब यूनिवर्सिटी छुट्टी नहीं दे रही, यानी 2-2 वीक हम मिड और फाइनल से पहले दोनों में 4-4 वीक हो जाएंगे, एक तो 4 वीक अगले में, 8 वीक हम छुट्टी सिर्फ एंजॉय करेंगे, तो फिर पढ़ेंगे कब? तो दैट इज आपके अपने उसमें है, नुकसान में है कि ये ना किया जाए। और ऐसा भी नहीं है, मेजॉरिटी स्टूडेंट मुझे ये बताते हैं कि कम से कम महीने में वो एक दफा अपने घर जाते हैं वीकेंड पे, जो नजदीक हैं। यानी मिसाल तौर पे कोई अब्टाबाद का है, मानसेरा का है, वगैरह वगैरह, वो महीने में एक दफा फिर भी जाते हैं। तो फिर हर मिड के बाद फिर पूरे हफ्ते के लिए रहने की तो कोई तुक समझ में नहीं आती। ठीक है, क्यों सादिया, भागना तो नहीं है? अच्छा, तो जनाब हमने बात की अबाउट दी कि ये आपका यूएफएन सिग्नल है। अब याद रखो, ये अभी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे भी कि हम डिफरेंट ऑपरेशंस सिग्नल पे कर सकते हैं। तो सिग्नल होता ही इसलिए है कि उस पर ऑपरेशन किए जाएं। ये ना कहना कि आवाम होती है इसलिए कि उस पर ऑपरेशन किए जाएं। ठीक है, तो सिग्नल इसलिए होता है कि उस पर ऑपरेशंस किए जाएं, उसको शिफ्ट किया जाए, उसको डिले किया जाए, उसको एडवांस किया जाए, उसको सम किया जाए, उसको डिवाइड किया जाए, सबट्रैक्ट किया जाए, स्केल किया जाए, तो कुछ किया जाए। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे मैंने क्या किया, अब आपने मुझे ये बताना है कि अगर अगर मिसाल के तौर पे पेन भी है, कागज भी है, तो फिर मसला भी कोई नहीं है। अगर ये इस डेफिनेशन मैंने ऊपर अभी लिखी, क्या मेरी इस डेफिनेशन से आप एग्री करते हो? इज इट राइट और रॉन्ग? सुमाइका, ठीक है कि गलत है? ठीक है, सुमाइका ने कहा ठीक है। अगर ये ठीक है, तो मेरे लिए सुमाइका जल्दी से लिख कर रहा हो, u ऑफ n माइनस के इज इक्वल टू, ये चीज लिख कर लाओ एवरीवन। सबसे पहले सुमाइका ला रही है, उसके बाद इधर से भी मांग रहा हूं। दे दो जो आयशा, क्विक, हो गया, जल्दी इसके लिए 0 फॉर n लेस देन 0 और कैर फॉर n लिखें जी, लिखें, कागज पे लिखें। कैर फॉर n ग्रेटर देन कर लिया, कम ऑन, शाबाश। चाहे ठीक किया गलत किया, क्लैपिंग, दैट्स गुड। सुमाइका आपने आना था मेरे पास। ठीक है, ठीक है, ये फॉर नहीं ये n गलत है।
सुमाइका, आई एम वेटिंग. व्हाट्स योर नेम? मशल. मशल ने रोशनी कर दी. Again, it's just okay. के क्या के? Okay. जी जेंटलमैन, आ जाओ. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं. थोड़ी सी गलती है, छोटी सी गलती है, छोटी सी. यही खड़े करके ठीक करके जाओगी. यहाँ खड़ी हो जाओ, जब तक ठीक नहीं करोगी वापस नहीं जाओगी. आशा ने भी ये लिखा. खड़े होकर जल्दी से ठीक करके लाओ. और मेरी तरफ देखें भी. खड़ा होना सजा के तौर पे नहीं है. मजे मजे वहां बैठ के कहा करके दिखाओ. कोई सजा नहीं है कि खड़े हो जाओ. उसके बाद तो चेयर नहीं है ना, इसलिए कहा यहीं पे करके वापस मत आओ, बैठ जाओ. किसी को सजा नहीं है. तो यहाँ पे जेंटलमैन क्या है? अब देखिए ना, आप थोड़ी सी तवज्जो दें. इसका मतलब है कि इसका एन की वैल्यू क्या थी? 0. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 0. जबकि ये कहां से स्टार्ट होगा? एन माइनस के इज इक्वल टू 0 से. इसका मतलब है कि एन इज इक्वल टू के. ऐसे ही है ना? इसका मतलब है कि दिस अगेन यू ऑफ एन कैन नॉट हैव एनी वैल्यू अदर देन 1. ईदर इट हैज अ वैल्यू 1 और 0. इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ एन, जैसे यहां पे था ग्रेटर और इक्वल टू 0, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू के नाउ. एंड इट शुड बी इक्वल नॉट इक्वल, एन इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू के, सॉरी, नॉट इक्वल टू के लिए द वैल्यू इज. तो गलती सुमाइका ने अपनी देखी? यस और नो? देखी? द वैल्यू, आपका मसला यहां पे था. गॉट इट? चलिए वापस. तो अगर मैंने इस तरह का वो दे दिया तो आप तो पेपर में करके कहेंगे सब कुछ ठीक, लेकिन जब मेरे पास आएगा तो मैं इन चीजों को देखूंगा. सर एक बार फिर रिपीट कर. एक दफा नहीं, मैं 2 दफा रिपीट कर रहा हूं. देखिए जी, मैंने कहा शफक, मैंने कहा कि जी मैंने आपको ये सिग्नल दे दिया कि यू ऑफ एन, तो ये, तो यू ऑफ एन माइनस के क्या है? तो आपने इसी फॉर्मेट में अगर देना है तो हमने कहा कि इसका इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, जबकि इसका इंडेक्स स्टार्ट होगा के से. प्लॉट कर लो, आसान हो जाएगा. आपका यू ऑफ एन जो है, दैट इज बाय प्लॉटिंग 0 1 2 3, 0 1 2 3. Am I right here? Now, lady, I am doing n minus k means k is equal to 2, for example. So, which means my signal will be shifted from 2, 3, 4, and 5. Am I right? 2, 3, 4, 5, and continuous. Now, this is u of n minus 2. अब अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहो तो द वैल्यू इज इक्वल टू, नाउ हियर द के इज 2. तो आप देख सकते हो कि द वैल्यू इज इक्वल टू 1 when n is greater or equal to 2, and it is equal to 0 when n is not equal to 2, या n is less than, बल्कि कर दो, that's great. n is less than k, n is less than k के लिए, n is less than k के लिए you have the values which are 0. क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं. तो बेहतर क्या होगा कि पेपर में आए उसको प्लॉट कर दो और फिर उसको उसका मैथमेटिकल ले आओ. तो वेरी सिंपल. अब आते हैं जनाब कि यूनिट रैम्प फंक्शन, यूनिट रैम्प सीक्वेंस यहां पे है. यूनिट रैम्प सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हमने वहां पे देखा था. क्यों सना? ठीक है. तो अगर मैं आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन आपको याद है कि आर ऑफ टी जो था, दैट वाज ग्राफिकली समथिंग लाइक दिस. इसका मतलब कि एंड दैट वाज द टी. डू यू हैव प्रॉब्लम इन लुकिंग एट द बोर्ड? एंड दिस इज आर एफ टी. दिस इज आर एफ टी. इसका मतलब यह है
कि यू आर, इफ यू रिमेंबर, मैंने वहां पे ये लिखा था कि यू आर आर एफ टी इज इक्वल टू टी, यानी कि अगर इधर 1 है तो फिर इधर भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है, क्योंकि स्लोप मैंने कहा था 1 है, क्योंकि मैंने स्लोप कहा था 1 है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है। नाउ जेंटलमैन, अगर ये तो हो गया, अगर मैं यहां पे लेकर आऊं तो क्या हो जाएगा, आर एफ एन इज इक्वल टू एन, जिसे वहां पे टी कहा था यहां पे 1 कह दूंगा। वहां भी ये था कि द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए इसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी आर एफ टी, जबकि फॉर द नेगेटिव वैल्यूज इट हैज 0। तो ये देखें यहां पर भी हमने लिखा कि आर एफ एन इज इक्वल टू एन व्हेन एन इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू 0 व्हेन एन इज लेस देन 0। ठीक है। अब अगर मैं इस सिग्नल को आर एफ एन माइनस के कर दूं और कहूं जिसका जवाब दे दो, क्या साहब पेन वगैरह कुछ नहीं है? तो करें ना फिर। 4 लोगों ने मुझसे काम लिया था, एक ने मुझे सबमिट किया, 3 ने उसको इग्नोर किया। इग्नोर करने वाले अपने हाथ रेज कर सकते हैं, ऐसे ही था, 4 थे ना। तो जिन्होंने इग्नोर किया वो कौन है, व्हाट्स योर नेम? अरीज को भूल गया था या अरीज ने जानबूझ के नहीं किया? बहुत ज्यादा बिजी थे, इतनी बिजी थे कि 5 मिनट का सवाल काम नहीं हो रहा था, नॉट एक्सेप्टेबल। और कौन था जिसने उसको इग्नोर किया? तैयार नहीं आ रहा क्या होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन लेकिन भेजा नहीं। और कौन था? 2 तो हो गए। जर्लिस्ट। ठीक है, चलें जी, शाबाश शाबाश, कमा। कहां तक पहुंचे आलियान? आ जाओ फिर जल्दी से, पूरा नाम क्या है? आलियान शाह। जी जेंटलमैन, नाम क्या आपका? हमाद, इसके बाद आ जाओ। हमाद आ रहे हैं जी। जल्दी से वहां पे करके बैठ के आओ, करके आओ, जल्दी करो जल्दी करो। जासिम निशात कर लिया है? कर लिया है? तो आ जाओ ना फिर। नाम नाम क्या है? सज्जाद। नहीं, मुझे मैथ्स की तरह इस तरह लिख कर दो। मैंने ये कहा कि मुझे आर एफ एन इसके बराबर है। गलत है। सज्जाद के बाद कौन आ रहा है? इब्रार। इब्रार ने ठीक कर लिया जी, दिखाओ नहीं किसको। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मुझे एक्सपेक्ट किससे था? किससे पहले सबसे एक्सपेक्टेड था? मशल से।
मशल है इस क्लास में? तो उसने पहला क्वेश्चन किया तो अभी नहीं किया, जल्दी से करो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ी सी तवज्जो दें तो अभी आपको क्लियर हो जाता है। व्हाट अबाउट यू? यहाँ को वैल्यू नहीं गई? अच्छा यहाँ नो ब्राउन। ओके, यहां पे तवज्जो देंगे। देखिए थोड़ी सी अगर आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, मैंने अभी कहा, फिर आप मेरी बात पे तवज्जो नहीं दे रहे, कि जो वैल्यू एन की यहां पे है वही वैल्यू आर एफ एन की होगी। लेकिन अब आपका एन जो है वो एन माइनस के पे चला गया है। Now the curve will be starting from not from the, for example, from 0, but it is a shifted unit ramp sequence. जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, कुछ शायद आइडिया हो भी गया हो कि अगर इसका मतलब है कि यहां पे अगर आर एन माइनस के है, अगर यहां पे आर एन माइनस के है, तो इट विल हैव ए वैल्यू आल्सो इक्वल टू एन माइनस के। ये और ये देखिए ना, यहां एन है तो यहां एन है। क्यों है रीच? अगर यहां एन है तो यहां एन है, इसका मतलब यहां वन है तो यहां वन है, यहां टू है तो यहां टू है, यहां एन माइनस के है तो यहां एन माइनस के है। नहीं क्लियर? ठीक है ना? अब आपने यहां से देखना है कि जनाब यहां पे था एन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। अब एन, क्योंकि यहां पे एन इज इक्वल टू जीरो था, यहां पे एन इज इक्वल टू के है, तो यहां पे आप लिखेंगे कि फॉर एन इज ग्रेटर और इक्वल, सॉरी, एन इज ग्रेटर और इक्वल टू के, और यहां लिख देंगे एन इज लेस देन के। इतना मुश्किल काम था ये। गलती समझ आई? नो सर? तो थोड़ा हैंड रेज कर सकते हैं नो वाला? यूर नेम? इमल। इमल देखो ना, हमने कहा कि देखिए आप थोड़ी सी तवज्जो कर देते थे, तो मैंने अभी ये एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ वन है तो यहाँ वन है, यहाँ टू है तो यहाँ टू है। इसका मतलब जो एन की वैल्यू है वो ही आर एफ एन की वैल्यू है। एग्रीड? अब आपकी वैल्यू एन नहीं रही, एन माइनस के हो गई है। इसका मतलब यहाँ पे अगर एन माइनस के है तो फिर यहाँ भी एन माइनस के, ऐसे ही है ना? और अगर ये एन माइनस के है तो इंडेक्स कहां पे शिफ्ट हो गया? पहले आपका इंडेक्स एन इज इक्वल टू जीरो था, तो ये जीरो से लेके आगे तक था। अब जीरो से लेके आगे तक था अगर ये कंटिन्यूस है तो। लेकिन अब इस केस में ये क्या हो गया है, एन इज इक्वल टू के से ये स्टार्ट होगा और फिर आगे जाएगा। यानी कि पहले मिसाल के तौर पे इसका प्लॉट नीचे है, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो इसका मतलब है कि पहले ये जीरो पे जीरो था, वन पे वन था, टू पे टू था, थ्री पे थ्री था, लाइक दिस, एंड इट इज गोइंग ऐसे ही है। इमल क्लियर है? अब आप इसको यूं कर लो, ये आर एफ एन है। एग्रीड? अगर ये एन है तो क्या शफक ये भी नहीं कर सकती कि आर एफ एन माइनस टू फाइंड, आर एफ एन माइनस वन कर दे मेरे लिए? कर सकती है शफक? तो जल्दी से कर दे फिर। तो ये जीरो है, ये वन, ये टू, ये थ्री, जीरो वन। अब ये जीरो वाला यहां चला जाएगा, वन वाला यहां पे आ जाएगा, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, यहां पे वन हो जाएगा, यहां पे टू हो जाएगा, एंड सो ऑन। नहीं क्लियर? ठीक है, यही बात यहां पे एक्सप्लेन की गई है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये देख लें जी, सॉरी, ये देख लें, हमने एन माइनस के किया, एन माइनस के फॉर एन इज ग्रेटर और इक्वल टू के, एन इक्वल टू जीरो फॉर एन इज लेस देन के। अब अगर आप इसको, मैं कहूं कि नहीं जिसको, अगर बंदा थोड़ा सा तंग करने वाला है तो ये भी कह सकता है कि जनाब इसको आप यू एफ एन के साथ रिलेट करो। तो यू कैन राइट द सेम आर ऑफ एन माइनस के, यू कैन राइट द सेम आर ऑफ एन माइनस के
in the functional or mathematical form as u of n, but shifted u of n's. तो ये तो 1 1 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अब हमारी वैल्यू जो थी वो 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3 यूं है, सब पे 1 1 1 नहीं है, तो दैट नीड टू बी मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू ऑफ n माइनस के। जैसे यहां पे n से मल्टीप्लाई हुआ था, ये n माइनस के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आसान है। यही चीज यहां पे सिखाने की कोशिश की गई है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये देख लें, दिस इज योर आर एफ एन एंड दिस इज योर आर एफ एन माइनस 2। तो देखें, जो 1 पे वैल्यू है वो 3 पे चली गई, जो 2 पे है वो 4 पे चली गई, जो 3 पे है वो 6 पे चली गई, एंड सो ऑन। 3 की वैल्यू 5 पे चली गई, सॉरी, 2 से शिफ्ट है ना। क्लियर? मूसा, इब्रार, ठीक है, एम्बल। अब वहां भी हमने पैराबोलिक पढ़ा था, टाइम में टी स्क्वायर कहा था, या एन स्क्वायर कह दो, इतना मुश्किल काम है। दिस इज नॉन लीनियर सिग्नल, दिस इज अ नॉन लीनियर सिग्नल। तो ये आप देख सकते हो कि जहां भी एन है वहां पे हमने एन स्क्वायर कर दिया। इसी तरह अगर आप शिफ्ट करोगे तो एन की जगह एन माइनस के आ जाएगा। कौन सा मुश्किल काम है? गॉट इट? इसी तरह देख लें, यहां पे एन एन था तो एन माइनस 3 3 से शिफ्ट हो गया, जो 1 वाला है वो 4 पे चला गया, जो 2 वाला है वो 5 पे चला गया, एंड सो ऑन। देन इज दी आपका सबसे प्यारा सिग्नल विच इज यूनिट सैंपल। यूनिट सैंपल, यूनिट सैंपल आई होप एवरीबडी नोज। अगर मैं इसको कहूं कि एन ऑफ एन माइनस के कर दो, आपका नाम मुझे भूल गया, सारा, सारा ने मुझे जवाब ला के देना है। काश मेरे पास भी रेफरी की तरह टाइम हेल्ड का एक कार्ड होता कि जी बस 8:35 10:35 पे टाइम रुक गया है, अगली क्लास में सो जाओगे जबकि मुझे जवाब दोगे। जी सारा जल्दी करो, बाकियों को बाकी आपको फिर बाद में छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगली क्लास किसकी है, और वो मेरे ख्याल लेट नहीं छोड़ती, छोड़ती है। अच्छा, वो अब इसके साथ ही मसला हुआ, वरना पहले वो खुद भी टाइम पे आती थी और लेट छूटती भी नहीं थी। जी सारा, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। कर लिया सारा ने? लिखे ना आप, आपने लिखा था नहीं? जो भी आंसर है वो लिखें। जी, सारा के साथ कौन बैठी हुई है? अलीजा ने कर लिया? वेट कर रही है किसी का? तो जल्दी करके आप भी आ जाओ। जो भी क्लास के स्लो मूवर्स होंगे उनको फिर तेज होना पड़ेगा। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से। लिख लिया? एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1। ये यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रहा क्या लिखा है। एन इज इक्वल टू के, यानी एन और के आपस में बराबर होंगे। ये कैसे मुमकिन है? नहीं, फिर तो एन माइनस के हमेशा 0 होगा, क्योंकि एन माइनस के हमने कहा है ना, अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर तो डेल्टा ऑफ 0 हमेशा आएगा। फिर तो हम गलत हो गए ना गलत? ठीक है।
जी आपका इंतजार कर रहा हूं। मशल ने किया कि नहीं? कर लिया? एक मिनट जी। अब देखिए कितना इजी है। हमें पता है कि इसकी वैल्यू, डेल्टा की वैल्यू 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। आसान बात है। लेकिन ये 1 की वैल्यू कब होगी? जब n की वैल्यू, जैसे यहां पे n की वैल्यू क्या थी? 0। यहां पे n की वैल्यू क्या होगी? k। और यहां पे क्या होगा? n इज नॉट इक्वल टू k। बस ये जवाब था। क्लियर? ओके, यही है, समझ आ गई? चलिए दोबारा बुलाता हूं। ओके, देन इज द लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसका तो आपको पता है कि एनी सीक्वेंस इन द वर्ल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय shifted and scaled unit impulses, unit samples. ठीक? Then is the ladies and gentlemen, नेक्स्ट के लिए समायका बी रेडी। जी, तो आपको ये भी पता है कि अगर आप u ऑफ n में से u ऑफ n माइनस 1 माइनस करें तो यू गेट अ यूनिट सैंपल। ठीक है? सिनोसाइड जस्ट द सेम। हमने ऑलरेडी बात की हुई है टाइम डोमेन में, कि टाइम डोमेन में हम कहते थे a टाइम्स साइन 2π/ft+5, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी सिनोसाइड 3 चीजों से उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वन इज द एम्पलीट्यूड, द सेकंड वन इज द फ्रीक्वेंसी, एंड द थर्ड वन इज द फेज। ऐसा ही है ना? ओके, अगर ये है तो इफ यू शिफ्ट इट टू द discrete time, it will become 2π fn or simply you can say a times 2 omega n plus phi. The same is here, where omega is representing the angular frequency and phi represent the phase. Clear? So if you take this signal, on the x-axis you take n, and the y-axis you take x of n, and you stem the signal, you will be getting this one by using which function in MATLAB? Which function in MATLAB? Stem. ठीक हो गया जी? उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने ये काम तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी किया है रियल एक्सपोनेंशियल सीक्वेंसेस को आपने प्लॉट करके मेरे पास लाए थे, और इसके हर एक जगह को आपने देखा। हर जगह से मुराद, हमने इसको यूं लिखा था, इफ यू रिमेंबर, हमने कहा था कि x ऑफ n इज इक्वल टू a अल्फा पावर n। यहां इसने अल्फा को सिर्फ a कह दिया, इसकी ये गलती है। अगर आप कहते हैं गलती है, कहती है गलती है, नहीं है, और a नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू इसने 1 ले ली, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आपने इस सिग्नल को अल्फा की मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए 0 से 1, 0 से -1, -1 से पीछे, 1 से आगे, आपने सारी जगहों पे इसको देखा, और आपने देखा कि जनाब यहां पे ये एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, यहां पे एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, यहां पे इन दो वैल्यूज पे ये एक्सपोनेंशियली डिके करता है। ऐसे ही था ना? एक्सपोनेंशियली डिके करता है। और आपने प्लॉट करते वक्त नॉर्मली ये कह दिया कि जनाब दिस ए और अल्फा मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कि आपने इन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल कर लिया। क्लियर? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वापस आ रहे हैं और यही चीज यहां से ऑब्जर्व करने जा रहे हैं कि जी वी टुक द अल्फा वैल्यू ग्रेटर देन 1 and we found that our signal grows exponentially. फिर हमने कहा नहीं, वी टेक द वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज बिटवीन 0 and 1, लेस देन 1। हमने कहा वेरी नाइस, द सीक्वेंस इज डिकेइंग exponentially. We also took the value of a less than 0,
यानी कि नेगेटिव पार्ट में आ गए। हमने देखा कि यहां पे हमारी वैल्यूज अल्टरनेट करती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, लेकिन हमने ये भी देखा कि 0 तक 1 तक ये डिके करती हैं, लेकिन 1 के बाद ये ग्रो करती हैं। ये चीज मैं आपसे आपकी थ्योरी में, आपके प्रैक्टिकल असाइनमेंट 1 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है। फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने कहा कि नहीं जी हम कोई एफएससी के स्टूडेंट तो नहीं है, हम तो माशाल्लाह आधे इंजीनियर हैं, इसलिए आपने कहा कि नहीं हम इस अल्फा की वैल्यू को कॉम्प्लेक्स लेते हैं, एंड यू टुक द वैल्यू ऑफ अल्फा एज अल्फा and ej theta, and even you took this a as complex and you took a ej phi and you put it the value here back and you worked with it, you played it with it. तो आपके ओपन एम की बुक में भी और इस बुक में भी आपको ये बताया जा रहा है, ये देखें जी, व्हाट इट इज डूइंग, एक्सपोनेंशियली decaying. Very nice. When the value of a is greater than 0 and less than 1. Similarly, यहां पे देख सकते हैं कि when it is less than 1, so it is decaying. But when it is a is less than -1, so then this problem is occurring. और जब आप 1 पे चले गए between this, तो the situation is here. तो ये आपने किया हुआ है। Then ladies and gentlemen, आपने ये भी किया हुआ है कि when it is exponential, when it is complex. ठीक है मूसा? और यहां पे आपने क्या रिप्लेसमेंट दी कि आपने इसको अब जे थीटा कह दिया, जे ओमेगा नॉट एन, आपने इसको ए एन अल्फा और ई जे थीटा एन कर दिया, विच इज इक्वल टू कॉस प्लस साइन। क्लियर हो गया? एंड यू प्लेड विद दिस एज वेल। So again, you played it for 1, greater than 1, less than 1, and you plotted them. ठीक है? तो इसी तरह आपको एग्जाम में कुछ भी दिया जा सकता है। देन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम आते हैं बेसिक ऑपरेशंस की तरफ। मैंने कहा ना सीक्वेंस हमने ड्राइंग रूम में तो नहीं लगाने, हमने उन पे कोई ना कोई ऑपरेशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कंप्रेशन एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, समेशन। जिसे मिसाल के तौर पे वन ऑफ द ऑपरेशन विच आई कैन लिस्ट हियर इज कन्वोल्यूशन। ठीक है? तो शफक बताएगी कन्वोल्यूशन में क्या होता था, नहीं याद आ रहा? तो क्या करती थी वहां पे? आप वहां पे 3 काम करती थी, शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग, टाइम डिले, नंबर 1, नंबर 2 मल्टीप्लाइंग, नंबर 3 एडिंग। तो कितना मुश्किल चीज है कन्वोल्यूशन कि उसमें इतने सिंपल 3 रूल्स हैं। कितना मुश्किल कन्वोल्यूशन है कि उसमें 3 बेसिक ये हैं, टाइम शिफ्टिंग, सारा टाइम शिफ्टिंग। आप एक सिग्नल पकड़ लेते थे, दूसरे सिग्नल को उसके साथ साथ शिफ्ट करते थे। शिफ्ट करते थे तो मैंने अभी बताया उनको दोनों में मल्टीप्लाई करते थे और फिर आप उसको ऐड कर लेते थे। वेरी सिंपल। इसलिए हम कहते हैं कि जनाब आपके पास कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस आप करते हैं। अब तो मैडम कुछ नहीं कहती, व्हाई यू आर लुकिंग एट द क्लॉक। ठीक है ना? अभी सर उनको पता नहीं है? सर उनको पता नहीं चलता, कभी क्या भी देते हैं। आज 2 लैब 2 कौन सी? 2 लैब 2 लैब एक ही दिन में? सर शायद बहुत जल्दी आए हो। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि टाइम शिफ्टिंग,
टाइम रिवर्सल, टाइम स्केलिंग, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, सिग्नल एडिशन, सिग्नल मल्टीप्लिकेशन, ये दो तो आखिरी मैंने कर दिए हैं, अभी कर दिए ना। तो जल्दी जल्दी ये चार भी कर लेते हैं ताकि हमारे कम से कम बेसिक ऑपरेशंस ऑफ सीक्वेंसेस कंप्लीट हों। और अभी अभी मैंने हर एक केस में आपको ये शिफ्टिंग करवाई है। हर एक जो प्रोसेस में मैं करता रहा, मैं साथ साथ ये शिफ्टिंग का प्रोसेस करता रहा। जहां भी मिसाल तौर पे एक्स ऑफ एन होता था, उसके साथ ही मैं एक्स ऑफ एन माइनस के करके आपको दिखा देता था। याद रखो कि दिस के वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज कॉल्ड द डिले, then this n minus k represent the, but if this k is the negative, it will be representing as time advance. ठीक है मात? ओके, तो यही चीज यहां पे आपको दिखाई जा रही है। और मजे की बात है, ये सारी चीजें आपने सिग्नल सिस्टम में पढ़ी हुई हैं। तो देखें जी, वही ये कह रहा है कि जी व्हाट आर यू डूइंग, you have the x of n and you are delaying or advancing by, because I don't know the value of k, whether it is positive or negative. Depending upon the value of k, it can be either time delay or it can be either time advance. Got it? फिर लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे वो आपको दिखाना चाहता है, ये देख लें मिसाल तो पे, दिस इज योर एक्स ऑफ एन एंड यू आर वांट टू फाइंड एक्स ऑफ एन माइनस 3। इसका मतलब जो 0 पे है वो 3 पे चला गया, जो 1 पे है वो 4 पे चला गया, एंड सो ऑन। टाइम रिवर्सल क्या है फिर? टाइम रिवर्सल इज दी, जहां भी मिररिंग, जहां भी एन की वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है पॉजिटिव कर दो, बस सिंपल। इसका मतलब है कि जहां एक्स ऑफ एन है वहां पे एक्स ऑफ माइनस एन कर दो, दैट इज कॉल्ड द टाइम रिवर्सल। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यू ऑफ एन ले लूं, जो कि बार बार ले रहा हूं, दिस इज यू ऑफ एन, this is 0, this is 1, this is 2, this is u of n, and I am interested in the u of minus n. Simply 0, -1, -2, and it will be 0, 1, 1 and 1. It is the time reversal. इसको टाइम फोल्डिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अगर पेपर में कहीं टाइम फोल्डिंग आ जाए तो घबराना नहीं है हमारा, ठीक है इब्रार? ठीक, अच्छा जी, आपने कहीं जाना है? लैब है तो लैब में चले जाएं, हमने तो आपको नहीं रोका। ओके, देन इज दी टाइम रिवर्सल के बाद, टाइम रिवर्सल के बाद इज दी एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ये भी अभी आपको कराया है कि नाउ दिस इज द एम्पलीट्यूड स्केलिंग, का मतलब है मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। क्या मतलब है सारा? आवाज आनी चाहिए, अगर आवाज नहीं आएगी तो अगला पूरा आधा सेमेस्टर जो है पहले पहले बेंच पे बिठाऊंगा। एक चीज बताता चलूं, इंजीनियरिंग जो है दैट इज मोर लाइक सेलिंग योर प्रोडक्ट। तो अगर आप, इफ यू आर ए शाय, तो माइट बी यू आर ए वेरी ब्राइट ब्रेन but you don't have the way to communicate, तो probably you will never be in success. या तो आपको एक ऐसा बंदा हमेशा चाहिए होगा जो कि आपके प्रोडक्ट को बेचे। मैं एक दो लॉयर्स को जानता हूं, उनमें से एक, हमने एक ही इलाके में और मुख्तलिफ स्कूल से पढ़ा, और वो अच्छी स्कूल से पढ़ा था, लेकिन उसमें में बोलने की सलाहियत नहीं है, लिखना बड़ा जबरदस्त करता है। वो लायर है, आज भी वो एक अच्छा लायर नहीं है। वो अपने एक दोस्त के साथ मिलके काम करता था, लिख के उसको ये देता था, वो सिर्फ जाके वहां पे प्रेजेंट करता था।
तो हर कोई समझता था शायद यही लायर है मेरा, ये तो सिर्फ पीछे बैठा हुआ कोई मुंशी है, इसलिए सारा वी हैव टू चेंज। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड स्केलिंग का मतलब ये है कि यू आर मल्टीप्लाइंग योर सीक्वेंस बाय ए स्केलर वैल्यू। So now the scalar value is not a signal. That's the reason you will be multiplying the amplitude of x of n with this k or a, whatever it is. जैसे यहां पे अगर आप देखें, यहां पे अगर आप देखें तो -1 पे 2 है, लेकिन यहां पे -1 पे 4 हो गया है, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। इसी तरह ये 0 पे 1 है तो ये 0 पे 2 हो गया है। इसी तरह ये 1 पे 2 था तो ये 1 पे 4 हो गया है, because the amplitude of these signal have been multiplied by an amplitude scaling factor. Got it? तो ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज ही नहीं होगा हमेशा, ये कम भी हो सकता है if the value of a is less than 1। मिसाल तो में भी 0.5, तो सबके सब वैल्यू टक करके आधे हो जाएंगे। नाइस। देन इज दी टाइम स्केलिंग। चले कल से यहां से शुरू करूंगा, लेकिन ये काम आपने बेइंतहा दफा किया है। मशल के साथ कौन है? नाइफा। नाइफा आपने कभी टाइम स्केलिंग की है? कब? सिग्नल सिस्टम में आप हर रोज करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं है। ये देखिए इस वक्त जो मैं काम करने जा रहा हूं, जस्ट इसको करके और फिर आपको छोड़ता हूं। ये देखें जी, मैं कोई भी वीडियो एक ऑन करना चाहता हूं, मिसाल के तौर पे जी कोई भी ले लें, फॉर एग्जांपल आई टेक दिस वन, और यहां पे मैं इसकी स्पीड को लेट कर, ये कितने मिनट का है टोटल? आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये है जनाब तकरीबन को 14 मिनट का, लेकिन इस 14 मिनट की वीडियो को अगर मैं 7 मिनट में देखना चाहता हूं तो मैं ये कर दूं, तो टाइम क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। इसी तरह अगर मैं इस वीडियो को 14 मिनट की बजाय 28 मिनट में देखना चाहता हूं, तो दैट इज द टाइम एक्सपेंशन। ये चीजें हमने नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, लेकिन आपको आइडिया हो गया कि मैंने सिविल सिस्टम में नहीं किया, मैं हर रोज ये करता हूं, ये करती हूं। क्यों नाइफा? ठीक है, तो अटेंडेंस ले लेते हैं जी, बैठे रहे अपनी जगह पे। दिस सेक्शन सी। मशल, मशल, मायरा, शायान, हाफिजा, फसीहा, खिजरा, हसन, सायरा, अवेज, सज्जाद, शाबान, उकाशा, उमर, मोहम्मद उमर, सना, शफक, Present. मूसा, हम्माद, आमिना, इबाद, इलियास, सलमान, सारा, इब्रार, अरीज, फैसल, जलाल, सबूर, सुमाइका, लुकमान, नाइफा, अलीजा, आयशा, सादिया, एम्बल, रेहान, दानियाल, मुजीब, तलहा, आलियान, जासिम, काशिफ, अहद। थैंक यू।